Good evening, friends. Welcome to our today's session on FNOP Charcha. We have with us Lakshya. So he's the founder of the SLT Trading Academy. Today's session, we're going to cover option buying versus option selling. So which one is better, and the do's and don'ts of the tricks of the trade. So welcome, Lakshya. Hi, Lakshya. Yeah, hi everyone. Thank you, Shankar, for introducing me. So, Lakshya, can you just share with us how did you start your trading journey? Just before we start, is my voice clear? Absolutely, absolutely Yes, fine. yes. Okay, so let us start with how I started, because I have never shared how I started in any of the videos in YouTube or anywhere. So basically, I'm an engineer and mechanical engineer, and before that, I got into Indian Army. I was in Indian Military Academy. Then because of some circumstances I have to because of family reasons I had to leave and got into the corporate world, and then I started my journey with some of the private companies, top companies who are into mechanical area. I mean, the first one was Larsen and Toubro, so everybody knows. I got into trading. One of my colleague introduced me. I mean, I got into trading actually during college days, but I got a bit more serious once I had money, because even if you are serious, you don't have money, you can't do anything. पैसा नहीं है तो क्या करोगे, कुछ काम का नहीं है, right? ट्रेडिंग में तो कुछ नहीं कर सकते. So I started when I got some money, and then slowly and steadily I experimented, and for first 2 3 years I was just like the guy who chases anything and everything which comes into news, into headlines. Just like Satyam was one of the thing where I lost the biggest. I mean, my biggest loss in Satyam was 14,000 that time, because my salary itself was 13,000. So that is how I started, and then later many things happened. Then 2008 9, that downturn, and उसके बाद फिर धीरे धीरे I got into a bit of options of stocks. लेकिन stock options में it was too much of trap, because news के पहले हम लोग लेते थे, and news के बाद totally crash हो जाता था premium, or we used to just lose. So started with trying everything and losing little bit, because salary था तो salary से ज्यादा तो नहीं कमा सकते, right? और once you are done with your rent and food and everything, जो बाकी बचा पैसा था, we used to try experiment, because ये तो पता था कि पैसा है इस चीज में, लेकिन कब आएगा, कैसे आएगा, we never knew this. तो इस तरीके से बढ़ते बढ़ते I got introduced to options in 2012, 12 or 13. तब मैंने निफ्टी स्टार्ट किया, एंड निफ्टी, बैंक निफ्टी तो बहुत बाद में, निफ्टी से करना शुरू किया, एंड देन स्लोली एंड स्टेडीली धीरे धीरे समझ में आया, नहीं आया, बाई 2014-15 चीजें समझ में आ रही थी. मेरा चीजों को देखने का नजरिया, बिकॉज आई ऑलवेज कॉल इट, इट्स नॉट अबाउट टेक्निकल, इट्स अबाउट पर्सपेक्टिव, किस तरीके से तुम देखते हो उस चीज को. तो वो बेटर होता गया, आई कैन से. एंड 2014-15 तक मेरा एक, शुरू में हम इसको इंट्यूशन कहते हैं, राइट? शुरू में जब हमको लगता है ऐसा होगा और हो जाता है, और कई बार जब होने लगता है तो हमें लगता है हमारा इंट्यूशन स्ट्रांग है. वो इंट्यूशन नहीं है, वो आपकी आपकी ऑब्जर्वेशन है इतनी स्ट्रांग कि आप चीजों को पकड़ लेते हो. मेरा कहना ये है. फिर उस इंट्यूशन और उस ऑब्जर्वेशन में आप टेक्निकल्स लगाते हो, और वो टेक्निकल्स आपको एक लॉजिक देते हैं, जिसको आप दिखा सकते हो दुनिया को कि देखो यार, मेरा टेक्निकल काम कर रहा है. लेकिन वो आपका ऑब्जर्वेशन है, सब चीजों को देखने का नजरिया जो काम करता है. तो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड, एंड फिर उसके बाद तो मोस्ट प्रॉब्ली मोस्ट ऑफ द पीपल नो कि यार फिर ट्रेड करते करते 2014-15 वाज गुड फॉर मी, एंड 2016 अगेन डाउनटर्न. जो 2008 में जैसे मार्केट क्रैश हुआ था, वैसे मेरी लाइफ क्रैश हुई, एंड आई लेफ्ट जॉब बिकॉज ऑफ कि पैसा बन गया है मार्केट में. एंड देन लेटर आई लॉस्ट दैट मनी, एंड ऑल्सो लॉस्ट जॉब फॉर 7-8 months. देन फाइनली अगेन गॉट जॉब, माई लाइफ बैक, उसको सेट किया. काफी स्ट्रगल्स थे उस बीच में. करीब 2 साल तक आई हैड मैक्सिमम ट्रेडिंग कैपिटल ऑफ 10,000 और 15,000, यू कैन से 20,000. उससे ज्यादा हो नहीं पाता था, अफोर्ड नहीं हो पाता था. लेकिन मैंने छोड़ा नहीं, मैं अपना टच बनाने में लगा हुआ था, बिकॉज आई थॉट वन थिंग कि अगर मैं 10,000 से 10 लाख बना लूंगा तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ. लेकिन इफ आई एम रॉन्ग, इफ आई माई सिस्टम इज रॉन्ग, माई ऑब्जर्वेशन इज रॉन्ग, मेरा तरीका गलत है,
तो मुझे कोई 1 लाख 2 लाख दे भी देगा तो क्या फर्क पड़ेगा, उससे तो मैं जीरो ही करने वाला हूँ। एंड मोस्टली इंटरेस्ट था ऑप्शन बाइंग में, तो ऑप्शन बाइंग में जीरो करना एक हमेशा दिमाग में एक भूत की तरह हॉन्ट करता रहता है कि यार जीरो तो नहीं हो जाएगा, जीरो तो नहीं हो जाएगा। लेकिन फिर समझना यह है कि जीरो नहीं होगा अगर आपको पता है कि आप गलत होते हुए निकल जा रहे हो। सो इट्स नॉट लाइक कि आप जीरो, मार्केट आपको जीरो कर रहा है, आप यू बिकम लाइक नम कि यार क्या करूं, समझ नहीं आ रहा है। वो समझना पड़ेगा कि क्या करना है। वो चीज समझ में जब आई तो कंट्रोल आ गया, क्योंकि जब लॉसेस पे कंट्रोल आ जाएगा तो प्रॉफिट पे कंट्रोल अगला स्टेप है। लोग पहले प्रॉफिट पे कंट्रोल चाहते हैं, तो वो चीजें जब समझ में आई तो धीरे धीरे फिर, और लास्ट 3 साल से 3 4 साल से मतलब अच्छा खासा प्रॉफिटेबल। एंड दिस ईयर इज ऑल्सो रॉकिंग, सो या पीपल विल कम टू नो अबाउट थिंग्स इन यूट्यूब वीडियोस इन कमिंग मंथ्स। तो ये है जर्नी आज तक। Very true, Laksha. What I liked ना, what you said about that ये पर्सपेक्टिव है और ये किसी का गट फील नहीं है। चार्ट तो देखो, सब तो सेम चार्ट ही देख रहा है, मोस्टली सब लोग सेम कैंडल स्टिक्स देख रहा है, तो किसी का प्रॉफिट होता है किसी का लॉस क्यों होता है? क्योंकि ये आपने सही बोला एकदम, पर्सपेक्टिव। और कभी कभी हमको लगता है यार मुझे पता नहीं मार्केट क्यों ऊपर जाएगा, पता नहीं मार्केट क्यों नीचे जाएगा, वो होता भी है। ये गट फील भी नहीं है, ये आपका देखने का नजरिया है। सही बोला आपने, ये बहुत अच्छा बोला। रियली लाइक व्हाट यू सेड। थैंक यू, थैंक यू। लक्ष्य, बहुत अच्छा जर्नी था आपका, बहुत मजा आया आपको सुन के। सो व्हेन यू स्टार्टेड योर फर्स्ट ट्रेडिंग, so have you started with directly with derivatives or you started with the equity then moved to futures or options? How your journey started and what you're doing right now? व्हेन आई स्टार्टेड तो शुरू में तो आई वाज ओनली इन्वेस्टिंग एंड वेटिंग। Okay. एंड देन आई स्टार्टेड लाइक यू नो, बिकॉज उस टाइम पे डीएलएफ और एचडीआईएल ये 2 3 शेयर्स थे जो काफी भागते थे। रियल एस्टेट काफी स्विंग होता था, फिर जेट एयरवेज था वो बहुत स्विंग होता था। तो आई यूज टू लाइक ट्राई टू टेक 2 3x लेवरेज, 4x लेवरेज, 5x लेवरेज एंड ट्राई टू गेट इनटू दैट स्विंग इंट्राडे में। इंट्राडे ही करता था, कैरी Mhm. फॉरवर्ड कभी नहीं करता था, क्योंकि यू कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड द लेवरेज पोजीशन। तो जो होना है इंट्राडे में होना है। तो शुरू में तो वही किया, फिर 2012 से आई गॉट इनटू ऑप्शंस। तो दैट Okay. इज हाउ आई स्टार्टेड। हाँ, Okay. So आपने कभी इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं कि लाइक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और उसके बाद? म्यूचुअल फंड्स करता रहा मैं, म्यूचुअल फंड्स करता रहा, स्टॉक्स लेता रहा। कुछ स्टॉक्स मैंने लिए जो गायब हो गए, आज भी पता नहीं कहाँ गए वो, मतलब उसमें से कुछ था, एक सत्यम था, आई टोल्ड यू राइट, या एचडीआईएल था, आई हैड यूनिटेक था, सुजलॉन था। दीज आर द सुपर स्टार्स ऑफ 2000, 10 11 12। या लेकिन किंगफिशर था, 70 80 रुपीज चला करता था। ओ जीएमआर था, 500 700 था, स्प्लिट होके 50 60 हुआ, फिर पता नहीं किधर गया अभी। तो आई ओके इन्वेस्टेड, बट द थिंग इज दैट वाज नॉट द टाइम टू एक्चुअली दैट वाज अ वेरी गुड टाइम फॉर ट्रेडिंग। आई अभी मैं देखता हूँ ना तो मुझे लगता है यार वो टाइम मस्त था। मतलब आपको क्या स्विंग मिलते थे और आपको बहुत बड़ा ब्रेकआउट भी नहीं मिलता था। इफ यू आर गोइंग हम्म रॉन्ग फॉर 1 डे 2 डे 3 डे और आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो आप होल्ड कर सकते हो, तो फोर्थ डे इट इज गोइंग टू गिव यू गुड वन। तो इस तरीके से मतलब इट वाज लाइक हिट एंड ट्रायल बहुत होता था, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता था, कोई बताने वाला था नहीं, तो कुछ पता ही नहीं था ना क्या चल रहा है। बस ये पता था कि हाँ, ऑप्शन होता है, एक्सपायरी होती है, मंथली एक्सपायरी है, और हमको मंथली तक में शायद कोई चमत्कार हो जाए कि वो हमारी तरफ जाने लगे। और वेट राइट करते रहते थे, करते रहते थे, करते रहते थे, और फिर लास्ट वीक में कभी कुछ होता था तो 10x हो जाता था। तो फिर दैट यूज टू गिव अस लाइक ए टैंकर ऑफ ऑयल फॉर नेक्स्ट मंथ। या फिर पेट्रोल खत्म तो अब सैलरी का इंतजार करो अपनी बोतल भरने के लिए। ओके आपका लर्निंग कैसे स्टार्ट हो गया ये ऑप्शंस के बारे में, डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट मेनली फॉर ऑप्शंस? मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि अभी एक फेस आपने स्टार्ट किया कि इक्विटी, देन यू मूव टू एफ&ओस और ऑप्शंस, देन देयर इज समथिंग कॉन्सेप्ट लाइक ए कॉल पुट एंड अदर, मे बी हम लोग जार्गन्स यूज करते हैं। इसका आपका Right. लर्निंग एक कैसा था आपका? देखिए, ऑप्शंस में मैं आया निफ्टी बैंक निफ्टी में, क्योंकि उससे पहले मैं स्टॉक में घुस गया था, क्योंकि शुरू में मैंने स्टॉक्स में ही इंट्राडे किया था। तो जब स्टॉक्स में इंट्राडे पकड़ा तो मुझे लगा यार इंट्राडे में स्विंग्स कभी मिले नहीं मिले। तो किसी ने बोला यार ऑप्शन, मतलब ऐसा होता था ना, कोई बोलता था कि यार मैं तो ये करता हूँ, तो हमें लगता था ये क्या चीज होती है, तो लेट अस फाइंड आउट। तो फिर ढूंढ के हमने कहा चलो ठीक है, लेट अस ऑब्जर्व, थोड़ा बहुत करते हैं। तो स्टॉक्स में आया। स्टॉक्स के बाद जब पता चला कि स्टॉक्स में तो भयंकर पंप एंड डंप होता है,
ऑप्शंस में सबसे ज्यादा होता है, मतलब सबसे ज्यादा लोग मुझे लगता है आज भी मैनिपुलेशन स्टॉक्स में है, और स्टॉक्स के ऑप्शन में उससे भी ज्यादा है। सबसे जो अगर कोई बोलता है मुझे ऑप्शन करना है, तो सेफ, अगर सेफ में बोले, ऑप्शन बाइंग इज स्टिल नॉट वेरी सेफ इन कंपैरिजन टू ऑप्शन सेलिंग। और फ्यूचर्स में कहूंगा बेटर है, क्योंकि अगर आप डायरेक्शन आपका सही है, आपको वेट करना है, तो फ्यूचर्स इज ए वेरी गुड थिंग। कैपिटल भी बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन ऑप्शन बाइंग में क्या था कि यार जो होना है होगा, नहीं हुआ तो निपट जाएंगे। तो इस तरीके से बहुत रिस्की था स्टॉक्स में। लेकिन किसी ने कहा कि यार इंडेक्स में अच्छा है, बेटर है, मतलब कहते हैं ना यार, उधर तो एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई, तो अभी खाई से निकल के आए थे, हमने कहा कुआं ही ठीक है, उसमें कूद जाते हैं। तो दैट इज हाउ आई गॉट इनटू ऑप्शन ऑफ निफ्टी बैंक निफ्टी। अदरवाइज ऐसा कुछ पता नहीं था कि क्या अच्छा होता है, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं थे ना। आई मीन आप थिंक अबाउट 2011-12, आपके पास क्या साइट, कितनी साइट्स होती थी, कितनी जगह होती थी, कहाँ पे जाके क्या ढूंढे, है ना। राइट। करेक्ट, सही सो बोला। अभी आप क्या मेनली यू आर ऑप्शन बायर, राइट? मोस्ट ऑफ द थिंग मींस व्हाट यू आर डूइंग, ऑप्शन बाइंग और सेलिंग? कितना परसेंटेज आपका ऑप्शन बाइंग में होता है आपका रिटर्न्स और ट्रेड्स? मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर ट्रेडिंग आप कहो कितनी बार मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ, तो मैं 70-80% ऑप्शन बायर हूँ एंड 20% ऑप्शन सेलर। या एंड मैं प्रेफर करता हूँ ऑप्शन सेलिंग ऑन वेडनेसडेज थर्सडेज, बिकॉज व्हाट आई मेरी कमांड इस चीज में है कि अगले 2 दिन में क्या घटना घट सकती है, क्या ट्रिगर आ सकता है, ग्लोबल सिनेरियो क्या है, ग्लोबली क्या हो सकता है, उसके बेस पे आई कैन एटलीस्ट नो द कंट्रोल्ड रेंज ऑफ इंडेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी। ठीक है। अब वो पता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, बट स्टिल कि 2 दिन का प्रेडिक्ट करना कि क्या रेंज होगा, इट्स इजियर देन थिंकिंग अबाउट द होल ऑफ 15 days or 1 month. So I prefer the same week one option selling. That also is Wednesday, Thursday, or till Wednesday or till Tuesday I prefer option buying. तो option buying मैं normally बहुत ही rarely करता हूँ on Wednesday, Thursday. ठीक है, because I know कि it is as good as betting on something which can go hero or zero. बहुत सारे लोग को पसंद भी आता है। तो I prefer risk को control करना। और तो एक आप बहुत लाइक important ऑप्शन तो ऑप्शन बाइंग या सेलिंग करते हैं तो आप इंट्राडे में करते हैं, लाइक पोजिशनल भी होल्ड करते हैं? एनी रीजन फॉर दैट? दोनों दोनों डिपेंड करता है किस तरीके से। तो अगर मुझे लगता है कि एक्यूमुलेशन हो रहा है, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि आज का मार्केट जो था, अगर हम वीकली टाइम फ्रेम देखें और डेली टाइम फ्रेम भी देखें, तो हमें लग रहा है कि यार मार्केट धीरे धीरे आके सपोर्ट के पास बैठ रहा है। तो कोई भी बुलिश मार्केट सपोर्ट के पास आके बैठता नहीं, वो सपोर्ट से दूर रहना चाहता है। ठीक है। तो अगर वो वहां पे आ रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली गैप डाउन की उम्मीद हो सकती है मंडे के लिए, कोई इवेंट एक्सपेक्ट हो रहा हो। ठीक है। तो इस सिनेरियो में मैं स्विंग के लिए प्ले कर सकता हूं, लेकिन यू नेवर नो कि क्या हो सकता है, क्योंकि सपोर्ट का काम सपोर्ट देना भी है। तो अगर वहां से बाउंस हुआ तो स्ट्रॉन्ग बाउंस होगा। तो इन सच काइंड ऑफ सिनेरियो इफ आई एम ऑप्शन बाइंग, इफ आई एम ऑप्शन बायर और मैं ऑप्शन बाइंग करना चाहता हूं, तो आई विल प्रोबेबली गो फॉर 70%, 75% ऑफ ऑप्शन ऑन द डाउन साइड, आई मीन पुट लूंगा, और 25% ऑन द अपसाइड। और ये चीजें कर सकते हैं जब आपको लग रहा हो कि मोस्ट प्रोबेबली आप सही हो, लेकिन जस्ट एज ए सेफ्टी आपको, क्योंकि यू नेवर नो राइट, किसी को नहीं पता कि क्या हो सकता है। हम क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि इफ यू आर गोइंग कैरी फॉरवर्ड, इवन बहुत सारे लोग यहाँ पे वेडनेसडे और थर्सडे को ऑप्शन कैरी करते हैं, तो ठीक है ना, तुमको लग रहा है ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, बट स्टिल फॉर सम सेफ्टी कीप समथिंग ऑन द अदर साइड ऑल्सो, क्योंकि यू नेवर नो कि तुम गलत हो जाओ, कब गलत हो जाओ, क्या इवेंट हो जाए। क्योंकि मेरे साथ काफी होता है ऐसा, जब मुझे लगता है यार मार्केट एकदम शांत है, अचानक से भूचाल आ जाता है। और जब मुझे लगता है भूचाल आने वाला है, तो भूचाल उसके एक दिन बाद आता है, डिले होके। बहुत सारे लोग जो सुन रहे हैं उनको पता होगा कि जब मुझे लगता है कि मार्केट में कुछ हो सकता है, उसके 1-2 दिन बाद वो चीजें होती हैं, और तब तक में हम गिव अप करने लगते हैं, लेकिन होती हैं फिर वो। तो दैट इज हाउ मार्केट इज, मार्केट का बिहेवियर ऐसा है। तो आपको प्लान करना पड़ेगा अपनी पोजीशन, और ऑप्शन बाइंग में एक्यूमुलेशन करके ही आप जा सकते हो। और छोटे प्रीमियम से मोह जो होता है, प्यार होता है, उसको छोड़ दो। ये जो 50 रुपीज, 70 रुपीज, 80 रुपीज, मैंने 2014-15 तक यही किया, 20, 30, 50, क्योंकि मंथली एक्सपायरी था तो ठीक है फिर भी। लेकिन वीकली एक्सपायरी में 40-50 रुपीज का ऑप्शन बाय करके यू आर नॉट गोइंग टू गेट वेरी लॉन्ग, बहुत लंबा नहीं चलने वाला है। मैक्सिमम टाइम लॉस ही होगा। हाँ, करेक्ट। तो आप लाइक ये बोले कि आप ओवरनाइट पोजीशन भी कैरी करते हैं, सो लाइक डू यू एक्सपायरी वाइज भी आप कैरी करते हैं पोजीशंस, या फिर मंथली और वीकली
एक्सपायरीज में हाउ डू यू डिसाइड कि कौन सा एक्सपायरी में ट्रेड करना है, व्हिच वन टू बाय और व्हिच वन टू सेल? Okay, good. This is a very good question because last 6 months में I have tested few things. तो I have got a very good result. तो मैं basically क्या करता हूँ कि if I am on Tuesday and 2 दिन बचे हैं एक्सपायरी को, Tuesday end of day, तो most probably I'll add few next week strikes on my watch list and देखूंगा दोनों का कि यार मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि कई बार आप देखोगे कि इस वीक का एक्सपायरी का जो प्रीमियम है वो तो मूव हो रहा है, लेकिन अगले वीक वाला तो बिल्कुल डेड पड़ा हुआ है। होता है ऐसा कई बार, और कई बार ऐसा होगा कि दोनों मूव हो रहे हैं। मतलब अगर आप कई बार बोलते हो यार इस वीक वाले ने 100% दे दिया, अगले वीक वाले ने भी 50-60% दिया, दैट इज अ गुड मूव। तो जब मुझे ऐसा कंपैरेटिवली एक अच्छा रिवॉर्ड दिखता है तो मैं स्विच करना प्रेफर करता हूं। अगर मुझे पोजिशनल जाना है, अगर मुझे लगता है आज से 2 दिन में मार्केट में कुछ बड़ा इवेंट हो सकता है, ब्रेकडाउन हो सकता है, ब्रेकआउट हो सकता है, तो मैं इस एक्सपायरी का लेके, तो मैं अपने जो माइंड में मेरे एनालिसिस है उसी को गलत साबित कर रहा हूँ। मैं खुद बोल रहा हूँ 2 से 3 दिन में हो सकता है, तो मैं ऐसी पोजीशन क्यों ले रहा हूँ जो 2 दिन में एक्सपायर हो सकती है? तो लेट मी गो फॉर 3 days, बिकॉज ऑप्शन में द ओनली थिंग इन योर कंट्रोल इज चूज टाइम। टाइम आप चूज कर सकते हो अपने हिसाब से कि मुझे इस वीक का नहीं अगले वीक का लेना है। मार्केट आपको मजबूर थोड़ी कर रहा है, नहीं तुम्हें इसी हफ्ते का लेना पड़ेगा। वो तो हमारा लालच बोलता है यार अगर मिला तो इस हफ्ते में बहुत मिलेगा, तो हम लालच में जा रहे हैं, जबकि आपका व्यू उसको गलत साबित कर रहा है। व्यू बोल रहा है 3 दिन बाद हो सकता है, 2 से 3 दिन लग सकते हैं, 4 दिन भी लग सकते हैं। तो इन सच सिनेरियोज आई गो फॉर द स्विंग एंड आई गो फॉर द नेक्स्ट वीक एक्सपायरी। राइट फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चंस है, डाउट्स क्वेश्चंस है, यू कैन डायरेक्ट मैसेज अस लाइक इन आवर स्पेस, वी कैन आस्क दीस क्वेश्चंस जो आप पूछने वाले हो, तो वी कैन ओपन इट अप। सो माय क्वेश्चन टू यू Lakshya, that before we, how do you analyze the trend? You are saying trend. So how do you analyze it? ये trend कैसे आप पकड़ सकते हो? कोई indicator use? Yeah. Okay, that's a good question. So ट्रेंड की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली मार्केट कुछ ना कोई ट्रेंड हमेशा होता है, ठीक है। जैसे इस समय हम कहेंगे कि यार आइदर मार्केट इज बाय द डिप और सेल द बाउंस, और बोथ, दोनों भी हो सकता है। तो जब दोनों होता है तो आप उसको रेंज बाउंड कहते हो। लेकिन स्ट्रॉन्ग कुछ ना कुछ तो स्ट्रॉन्ग होता है, कोई ना कोई एक चीज तो स्ट्रॉन्ग होगी। वो कैसे पता करें भाई? 15 मिनट का कैंडल देखो, क्या ग्रीन वाले बड़े बन रहे हैं या रेड वाले बड़े बन रहे हैं? मतलब आप धीरे धीरे ऊपर जाते हो छोटे छोटे कैंडल बना के, और एक रेड कैंडल में आप पूरा खत्म कर देते हो। इसका मतलब ये हुआ कि रेड डोमिनेटिंग पोजीशन में है, ठीक है। अब ओवरऑल ट्रेंड एक होता है मेजर, बड़े टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो बड़े टाइम फ्रेम में राइट नाउ अगर कोई देखे तो उसको ये लगेगा कि यार बैंक निफ्टी ने एक तरह से डबल टॉप काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाया है। कई लोग उसको डबल टॉप नहीं बोलेंगे, कई लोग, ये देखिए मैंने बोला ना, नजरिया है। मेरा नजरिया बोलता है कि ये डबल टॉप है, किसी का नजरिया बोल रहा है नहीं नहीं ये कोई हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर कुछ बनाने की कोशिश कर रहा होगा। अलग अलग लोगों का अलग अलग नजरिया। मैं कह रहा हूं कि शायद ये डबल टॉप बना चुका है और उसके बाद हम नेक के पास है, और इसका जो नेक है वो आपका 16,700 पे है। मतलब ऐसा नहीं है नेक एक बार में टूट जाएगा, जब दोबारा आएंगे हम वहां पे तो वी विल गो टू द नेक्स्ट कंसोलिडेशन जोन, जो कि 15,700 16,000 के पास थी, क्योंकि वहीं से हमने ये पूरी रैली स्टार्ट की थी। तो दिस इज हाउ आई लुक एट द ट्रेंड। तो ट्रेंड राइट नाउ डाउन है, लेकिन डाउन ट्रेंड में भी आपको बड़े बड़े बाउंस मिलेंगे, और वो बड़े, सपोज वी आर सीइंग द बिगर रेड कैंडल्स एंड द वीकर बुलिश कैंडल और वाइस वर्सा, दोनों सिनेरियो में वी कैन स्टिल बी कंफ्यूज कि यार ओवरऑल ट्रेंड क्या है और इंट्राडे का ट्रेंड क्या है। तो अगर मेरा जो टाइम होराइजन है वो इंट्राडे है, जैसे मैं अभी फिलहाल आई डोंट वांट टू कैरी दीज डेज, इट इज वेरी रिस्की टू कैरी पोजीशन, बिकॉज कहीं से कहाँ मिसाइल आ रही है या कहीं अच्छी न्यूज आ रही है। बिकॉज 2 days बैक वी सॉ अ वेरी बिग ग्रीन कैंडल एंड उसके एक दिन पहले वी सॉ अ वेरी बिग रेड कैंडल, एंड दिस टेल्स यू लाइक कि मार्केट में अभी भी इनडिसाइसिवनेस है। लेकिन क्या हम हाई पे हैं? नहीं। क्या हम लो पे हैं? नहीं। हम मिड पॉइंट पे हैं। तो मिड पॉइंट में फाइट तो होगा, ठीक है ना ही हम 18,600 पे हैं, ना ही हम 16,400 पे हैं, हम मिड पॉइंट पे हैं। तो मिड पॉइंट पे अगर आप बोलो कि क्या मार्केट का ट्रेंड डाउन है? नहीं। क्या मार्केट का ट्रेंड अप है? वो भी नहीं।
मार्केट इज इन ए रेंज और उस रेंज का आपको टॉप और बॉटम पकड़ना पड़ेगा। तो जब हम ट्रेंड लाइन एनालिसिस करते हैं तो रिसेंटली में मैंने अपने हर वीडियो में बनाया भी है, वो वी आर मेकिंग काइंड ऑफ ट्राइंगल और उसके अंदर है हम, ठीक है। और उसके अंदर हम जब तक हैं तब तक हम वी आर नॉट इन एनी ट्रेंड, टॉप पे सेल करना है, बॉटम पे बाय करना है। लेकिन कभी ना कभी ये ट्रेंड टूटेगा और उसके लिए एक ट्रिगर चाहिए। ट्रेंड को टूटने के लिए, चेंज होने के लिए ऑलवेज इट नीड्स ए ट्रिगर, ठीक है। नथिंग हैपेंस विदाउट ए ट्रिगर एंड आई बिलीव कि अगर हम ट्रिगर की बात करें तो रशिया यूक्रेन का बहुत कुछ चल रहा है और इसी तरीके से कोई ना कोई न्यूज पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। तो विथ ऑल द सिनेरियोज हमें ये लगता है कि सूनर देन लेटर वी आर गोइंग टू ब्रेक दिस रेंज। और क्योंकि अभी यूपी इलेक्शंस हैं, देन यू हैव एलआईसी आईपीओ आने वाला है। इफ मेनी पीपल डोंट नो कि आईपीओ से होता क्या है, आईपीओ से लिक्विडिटी सक आउट होती है, बहुत ज्यादा होती है, और ये तो आज तक का सबसे बड़ा है। और जो इससे पहले जो आज तक का सबसे बड़ा था पेटीएम था, उससे भी 3 गुना बड़ा है, 4 गुना बड़ा है। तो कहने की बात है, अगर हम लॉजिक समझें तो लिक्विडिटी का खेल है पूरा ये। फेड भी लिक्विडिटी निकाल रहा है, आईपीओ भी लिक्विडिटी निकालेगा, यूपी इलेक्शन की अनसर्टेनिटी है, यूक्रेन रशिया में वॉर चल रहा है। जब इतनी इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं तो मार्केट अभी अगर ऊपर जाना भी चाहता है तो नहीं जा पाएगा, नीचे जाने के लिए ट्रिगर ढूंढ रहा है। लेकिन नीचे जाने की रेंज आपको वो ट्राइंगल दे रहा है, जो कि मैंने बताया आपको 16,700 भी एक रेंज, एक एरिया है जो इस बार टूटा। तो मोस्ट प्रोबेबली वी विल ब्रेक द रीसेंट लोज आल्सो। तो दिस इज हाउ आई पिक द ट्रेंड। तो इंट्राडे का ट्रेंड है, उस रेंज के हम पास में आएंगे, रेजिस्टेंस है, 15-20 मिनट का कैंडल देखो, एक आध आपको इनवर्स हैमर, शूटिंग स्टार, डोजी क्या बन रहा है। क्या होगा, कई बार हम रेजिस्टेंस के पास जाएंगे, इतनी तेजी से वो ऊपर जाएगा, आपको लगेगा यार ये ब्रेकआउट करने जा रहा है, लेकिन रिमेंबर कि वो ऊपर आया ही फोर्स के साथ है। तो उसका बहुत इंटेंसिटी के साथ बुलिश बिहेवियर दिखाना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि वो तो दिखाते हुए ही ऊपर आया था ना। लेकिन अब वो ब्रेक करने की कोशिश शायद कर रहा है, इसलिए दोबारा से उसकी इंटेंसिटी बढ़ी है रेजिस्टेंस पे। और अगर वो इस बार फेल हुआ, मतलब हवा भर के आया था, अब हवा निकल जाएगी तो फिर वापस नीचे आ जाएगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी सच काइंड ऑफ बिहेवियर एट द रेजिस्टेंस, सेम थिंग एट द सपोर्ट। फाइनल सपोर्ट जब ब्रीच करने जाएगा तो बहुत तेजी से जाएगा, लगेगा कि यार ये तोड़ देगा। लेकिन अगर वो तेजी से जाने के बाद भी फेल कर गया और वापस से बाउंस कर गया ना, तो ऑल दी पीपल हु अटेम्प्टेड दैट, जो शॉर्ट गए थे, वो फंस जाएंगे, वो ट्रैप्ड हो जाएंगे। और जब शॉर्ट्स फंसते हैं तो वीकली एक्सपायरी का सिस्टम ही ऐसा है कि फिर वो लोग अगले एक्सपायरी के एक दिन पहले एक्सपायरी तक वो लोग कवर करते करते थक जाते हैं, और बाउंस इतना स्ट्रांग आता है कि जो बुल को लगता है कि ये तो नई रैली है, और बियर बोलता है मैं तो गया। तो दिस इज द सिस्टम ऑफ एफएनओ, इफ यू जस्ट कॉल इट इन ए प्लेन सिंपल वे। यही तरीके से हम समझ सकते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है। और वही चीज हमने देखी 2 दिन पहले कि नीचे से बाउंस और ऊपर से फॉल। दिस इज हाउ आई लुक एट द ट्रेंड बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन, प्योर प्राइस एक्शन इसी को कहते हैं, और कुछ नहीं है। फिर इंडिकेटर आप उसके ऊपर लगाते हो तो आपको थोड़ी सी और हेल्प मिल जाती है। करेक्ट, या सो लक्ष्य, आई हैड वन क्वेश्चन, लाइक कि आपने बोला कि यू ट्रेड बिटवीन द टॉप्स एंड बॉटम्स, लाइक रेंज, अगर रेंज बाउंड है अंडरलाइंग, तो लाइक सेल ऑन द टॉप एंड बाय एट द बॉटम। तो आप ये रेंज लाइक कैसे डिफाइन करते हैं, लाइक हाउ डू यू गेट दैट रेंज एंड व्हाट इज द टाइम फ्रेम, लाइक यू सी सम 50 EMA एवरेज और 200 DMA एवरेज, शॉर्ट टर्म एवरेज देखते हैं आप, लॉन्ग टर्म एवरेज देखते हैं। तो एक बार लाइक विद सम एग्जांपल्स कैन यू एक्सप्लेन आवर ऑडियंस कि आप ये रेंज कैसे डिफाइन करते हैं, और एट व्हाट पॉइंट यू थिंक कि ये रेंज ब्रेक हो सकता है, तब ऐसा अगर होना होगा तो। यहाँ पे 2 चीजें मैं हमेशा कोशिश करता रहता हूँ। पहली है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता रहता हूँ कहीं पे। कई लोग बोलेंगे ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई अब तो नया हाई बनेगा, नहीं, ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद शायद एक और ट्रेंड लाइन बन रही हो जो हमने अभी तक नहीं बनाई हो। क्योंकि हर आदमी अपने कंफर्ट और अपने नजरिए के हिसाब से बोल रहा है कि यार ये वाला रेजिस्टेंस है, लेकिन हो सकता है उसके ऊपर भी एक रेजिस्टेंस बन रहा हो जो हमने अभी तक देखा नहीं, क्योंकि हमारा पहला रेजिस्टेंस ही हम नहीं ब्रेक करे हैं। तो अगर आप बोलो कि किस तरीके से पता चलता है, बेसिकली एक तो ट्रेंड लाइन हो गई, दूसरा है कि मूविंग एवरेजेस आप यूज कर सकते हो। मैं नॉर्मली 50 और 20 यूज करता हूँ, और मेरा ये मानना है कि 20 मूविंग एवरेज ऑन इंट्राडे वर्क्स लाइक मैजिक। तो अगर आप 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं कर पा रहे हो आवरली टाइम फ्रेम में, तो मोस्ट प्रोबेबली इंट्राडे में आप तकलीफ में रहने वाले हो, क्योंकि आवरली का 20 मूविंग एवरेज आराम से ब्रेक हो जाना चाहिए। अगर आपका ट्रेंड डिसेंटली स्ट्रांग है, बहुत बहुत स्ट्रांग नहीं चाहिए, डिसेंट स्ट्रांग है ना, ब्रेक कर जाओगे। डेली का 20 मूविंग एवरेज जो है वो ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो बेसिकली आप सोचो कि यार मैं इंट्राडे ट्रेड करना चाहता हूं या फिर मैं स्विंग करना चाहता हूं। अगर मैं स्विंग करना चाहता हूं और डेली का 20 MA टूट चुका है,
तो मैं स्विंग पोजीशन वहां से लूंगा, अपने जो 20 MA है उसके नीचे 30 40 50 पॉइंट जो भी है स्टॉप लॉस लगा के मैं वेट करूंगा, क्योंकि जब भी 20 के ऊपर या नीचे हम आते, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आते हैं, तो जो इंटेंसिटी है ना वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है। इट इज नॉट पॉसिबल टू ब्रेक इट विदाउट ए गुड मोमेंटम। तो मतलब मोमेंटम आपके साथ है, और होता क्या है ज्यादातर लोग के साथ, वो लास्ट फेज ऑफ रैली मिस करते हैं। जितने भी लोग यहाँ सोच रहे हैं कि मैं तो ट्रेल कर लेता, ये कर लेता, वो कर लेता, वो ट्रेल इसलिए नहीं कर पाते बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड कि यार हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को ब्रेक किया है। ठीक है, अगर आप मैकडी फॉलो करते हो तो मैकडी इज ए ब्यूटीफुल इंडिकेटर विच टॉक्स अबाउट मोमेंटम, कि भाई मोमेंटम है कि नहीं है। अगर आप बॉलिंजर यूज करते हो तो आपको पता है कि अगर आप बॉलिंजर यूज करते हो तो आपको पता है कि बॉलिंजर के जो बैंड्स होते हैं वो एक तरह से आपको टारगेट बता देते हैं कि भाई ऊपर हम जाएंगे तो एटलीस्ट इसको टच करेंगे। अगर मिडिल के ऊपर निकले, ऊपर से गिरे तो नीचे वाला टच करेंगे। अब आवरली टाइम फ्रेम कब देखना है? जब आप इंट्राडे की बात कर रहे हो, सुबह से लेके शाम तक में। जब आप 2-3 दिन की बात कर रहे हो तब आप डेली लगाओगे। जब आप अगले 10-15 दिन की बात कर रहे हो तो आप वीकली में भी जाके देखोगे। तो दिस इज हाउ आई ट्राई टू एनालाइज कि कौन सी रेंज हो सकती है, साथ ही ट्रेंड लाइन, प्राइस एक्शन, आपके जो कैंडल्स बन रहे हैं, और जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि इंटेंसिटी देखता हूं मैं, कि अगर हमने रेजिस्टेंस को हिट किया हाई इंटेंसिटी से और उससे डबल हाई इंटेंसिटी से हमने फेल किया, तो दैट इज स्टॉप, जिसको लोग इंगल्फिंग कैंडल भी बोलते हैं। इंगल्फ क्यों होता है वो? क्योंकि लोग गए और दीवार पे सर मारा और पिचक गया सर और गिर गए पीछे, या फिर इतना इतना स्पंजी था वो कि वापस की तरफ उसने फेंक दिया। दैट इज रेजिस्टेंस, पावर ऑफ दैट लाइन और दैट जोन जहां पे सेलर तो बैठा हुआ था कि यार आओ तुम बताता हूं। तो दिस इज हाउ इट हैपेंस। लक्ष्य ये आप एनालाइज करने के टाइम पे वॉल्यूम के लिए कुछ इंपॉर्टेंस देता है कि नहीं देता है? देखिए, वॉल्यूम इज बेसिकली एन इंडिकेशन कि हाँ यार बड़े लोग घुसे हैं, या काफी क्राउड घुसा है, या फिर हो सकता है इस एरिया पे देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर इंटरेस्टेड, हु गॉट इंटरेस्टेड। तो हम जैसे कहते हैं कि डबल बॉटम, डबल बॉटम कैसे होता है? इस एरिया पे शार्प बाउंस आया था, हम वापस से वहां पे जाएंगे तो ये लोग जो लास्ट टाइम खरीदे थे ये नहीं खरीदने वाले हैं, क्योंकि इस एरिया पे बहुत सारे लोगों ने मिस किया होगा। तो वापस से जो मिस करे वाले लोग हैं वो एंटर करेंगे। तो दैट इज हाउ। तो वॉल्यूम स्पाइक वहां पे आपको दिखा देगा। तो पहले वाले वॉल्यूम से दूसरी बार में वॉल्यूम अगर ज्यादा है तब मैं कहूंगा हाँ ये डबल बॉटम है। अगर वॉल्यूम नहीं है तो स्पाइक तो आएगा, लेकिन दैट कुड बी, मतलब उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते मेरे हिसाब से। ओके फाइन। तो आपने अभी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का एक्सप्लेन किया है। सी ऑप्शन बायर के लिए आप बोल रहे हैं कि 80% अपना आपका ऑप्शन बाइंग में होता है। ऑप्शन बायर के लिए मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपको कुछ प्रॉफिट नहीं कर सकते, राइट? तो मार्केट में तो एक मोमेंटम होना चाहिए। अब मान लीजिए कि आप बोल रहे हैं कि रेसिस्टेंस में आप सेल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सेल करना मींस आई मीन टू से, आप लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि आप पुट बाई कर रहे हैं, और रेसिस्टेंस में आप कॉल बाई कर रहे हैं क्योंकि आपको बाई करना है, तो कॉल बाई कर रहे हैं क्योंकि आप ऊपर की तरफ आप बेटिंग कर रहे हैं। सपोर्ट पे, हाँ। तो ये केस में आपको मोमेंटम है क्या नहीं है वो कैसा मालूम पड़ेगा? क्योंकि वो काफी दिन तक उधर ही रेसिस्टेंस पे ही रह सकता है, नहीं तो सपोर्ट पे भी हो सकता है। एंड उसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? क्योंकि इधर ब्रेकआउट भी हो सकता है, डाउन साइड ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हो सकता है। तो ये केस में आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, और आप मोमेंटम को कैसा आप कैच करेंगे कि ये टाइम पे मुझे बाई करना है तभी मुझे ये ऑप्शन में मुझे प्रॉफिट मिलेगा? पहली चीज तो ये है कि आई वेट फॉर द रिटेस्ट। ठीक है, सपोज वी हिट द रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस हिट होना इज नॉट ए मूवमेंट, इट हैज टू बी, एक बार हम गए, हमने रेजिस्टेंस एक लेवल था उसको हिट किया, वापस हम नीचे आए, आर वी गोइंग अगेन एंड टेस्टिंग इट, ट्राइंग इट एटलीस्ट? ठीक है, अगर हम उसको दोबारा टेस्ट करने गए, ट्राई करने गए, और हम पुराने हाई को तोड़ देते हैं, हम जिसको ब्रेकआउट भी बोलते हैं कि यार प्रीवियस हाई को तोड़ दिया तो ब्रेकआउट ही है, इट मे नॉट बी, इट 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 मे नॉट बी ए ब्रेकआउट ऑल्सो। कई बार होता है फेक ब्रेकआउट जिसको बोलते हैं, लेकिन उसको कहाँ पे पकड़ोगे आप? तो कई बार ये चीजें कहाँ पकड़ में आती है, जैसे आपने RSI लगाया, बहुत सिंपल इंडिकेटर है लेकिन बहुत बेहतरीन है। आप 15 मिनट्स, अगर पिछले 2 घंटे में हमने एक ही लेवल को इन लास्ट 2 आवर्स हमने सेम एरिया में जाके दोबारा से उस रेजिस्टेंस को हिट किया है, और हमने नया हाई भी बनाया है, नया हाई भी बनाया है, तो RSI शुड हैव शोन अस ए बेटर इंटेंसिटी जो प्राइस की है। लेकिन अगर वो नहीं है तो हो सकता है, बिकॉज इंडेक्स मैनेजमेंट इज ए वेरी कॉमन गेम, हो सकता है कोई एक स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ हो तो वो थोड़ा सा खींच लिया हो,
we have 10 हम्म, stocks with more than I think 60 50 60% weightage, तो ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो मैं 5-10 पॉइंट 5-10 पॉइंट्स का क्रॉस हो जाना उसको ब्रेकआउट नहीं कहता, मैं ब्रेकआउट कहता हूं जिस तरीके से वो होता है। और मैं आपको बताऊं कि जो ब्रेकआउट होता है, जेन्युइन ब्रेकआउट कभी भी 15-20 मिनट के अंदर नहीं होता, 1 घंटे तो लगा देता है, 1 आवर एटलीस्ट। तो ऊपर जाएगा, हिट करेगा धीरे, लेकिन वो नीचे बहुत नहीं आएगा, वो बहुत नीचे नहीं आएगा, वो अपनी सेफ जोन में रहेगा कि मैं तैयार हो रहा हूं अगले अटेम्प्ट के लिए। तो दिस इज हाउ आई एंटिसिपेट कि मोस्ट प्रोबब्ली वी आर गोइंग टू ब्रेकआउट और नॉट। और अगर ब्रेकआउट नेक्स्ट अटेम्प्ट में हम ठीक ठाक लेवल से आके वापस से अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इसमें हेल्प करेगा आपको मैकडी। तो जो मैकडी है उसका काम ही है मोमेंटम बताना। तो मैकडी क्रॉसओवर्स कई बार क्या होता है कि इवन इफ मार्केट इज नॉट फॉलिंग, मैकडी स्टार्ट्स गोइंग डाउन इन शॉर्टर टाइम फ्रेम। अब हम लोग क्या सोचते हैं, मैकडी नीचे जा रहा है मतलब ये गिरेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। मैकडी नीचे जा रहा है और जाता जा रहा है, उसके बाद भी अगर प्राइस नीचे नहीं आ रहा ना, तो ये चीज जान लो कि अगर मैकडी ने फिर से बुलिश क्रॉसओवर दिया, ठीक है, उन दोनों लाइंस ने बुलिश क्रॉसओवर दिया 5 मिनट्स 15 मिनट्स में, तो यू विल सी ए बिगर इंटेंसिटी अप मूव, बिकॉज फॉर मैकडी टू गो अप इट हैज टू कम डाउन एंड अगेन क्रॉस। तो अगर मैकडी क्रॉस को हम कहते हैं कि प्राइस में दिखना चाहिए, तो जैसे ही क्रॉसओवर होगा ना 15 मिनट्स में, थोड़ी डिसेंट टाइम फ्रेम में 15 मिनट्स में, तो आपको मार्केट में प्राइस भी गिरता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर प्राइस नहीं गिर रहा है और मैकडी की दोनों लाइनें नीचे की तरफ आ रही हैं अपनी, ठीक है, तो डेफिनेटली इट इज प्रिपेयरिंग फॉर ए नेक्स्ट बिग अटेम्प्ट ऑफ अपसाइड। क्योंकि अगर हम बोलते हैं कि ये रेजिस्टेंस है, वी कैन नॉट कॉल इट रेजिस्टेंस बिकॉज वी हिट इट वंस, वी हैव टू हिट इट अगेन एंड फेल, and when it hits and fails again, that is when I short. I don't short in the first attempt. Similarly for the bottom, many times recently में जो बड़ी रैली जिस दिन आई थी, उस दिन भी हमने यही कहा था कि this is going to bounce at least by 300-400 points, but market bounced by 1200 points. तो उतना हमें नहीं पता था, उतना किसी को नहीं पता, लेकिन 300-400 points predict करना आसान है। If you just try to observe कि व्हाट इज द बिहेवियर, हम नीचे जा रहे थे लेकिन मैकडी लगातार ऊपर जा रहा था, जीरो लाइन के पास आ रहा था 5 मिनट्स में 15 मिनट्स में, वो क्या दिखाता है, वो दिखाता है कि जो नेगेटिव इंटेंसिटी थी वो कम हो रही है। प्राइस नीचे गिर रहा है, मैकडी नीचे गिर नहीं रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है दोबारा गिर जाए। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर प्राइस टेल्स एवरीथिंग, इसीलिए मैं कहता हूं प्राइस एक्शन, तो प्राइस को भी गिरना चाहिए था या प्राइस को भी उठना चाहिए था। कई बार आपको प्राइस थोड़ी देर तक छकाता है, परेशान करता है, लेकिन इट माइट बी प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग बिग, और वो चीज के लिए आपको वेट करते रहना है। आपको 5 मिनट का, जब भी 5 मिनट का बड़ा कैंडल दिखे जो रिसेंट के सारे कैंडल से बड़ा हो, 10 to 15 कैंडल से, और वो आपको किसी एक डायरेक्शन में जा रहा हो, देयर इज ए हाई चांस वी माइट बी ब्रेकिंग इन दैट डायरेक्शन। दिस आई एम टॉकिंग टोटली ऑन इंट्राडे पर्सपेक्टिव। जब आप बोलते हो यार मार्केट गिर गया है, क्या ये बाउंस करेगा, तो 5 मिनट लगाओ, बैठे रहो, देखते रहो, कंसोलिडेशन चलेगा चलेगा चलेगा, आपका पेशेंस आपको थका देगा। आप एंट्री ले लोगे, वो ब्रेकआउट नहीं करेगा, वो रिवर्स नहीं करेगा ऊपर की तरफ, आपको लगेगा यार लगता है मैं गलत फंस गया। लेकिन यहाँ पे बहुत बार आपको थोड़ा सा ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखना पड़ेगा कि क्या यार ग्लोबली कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, क्योंकि कई बार हम गिर जाते हैं और यूएस फ्यूचर सडनली ऊपर जाने लगता है। तो नाउ यूएस फ्यूचर इज गिविंग मी सम कुशन और सपोर्ट कि ये मैं ऊपर जा सकता हूँ, बिकॉज पॉजिटिविटी आ रही है ग्लोबल पर्सपेक्टिव से। तो अब हमको ये टेक्निकल, मैंने बोला ना हमेशा टेक्निकल ऑलवेज नीड्स ए ट्रिगर, ठीक है, अगर कोई ट्रिगर नहीं है तो इट इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस डे। मतलब अगर प्रीवियस डे भी हम ऊपर गए थे और आज हमने एक डिप देखा है और कोई निगेटिव ट्रिगर नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये डिप बाय हो जाएगा। वी विल कंटिन्यू टू डू व्हाट वी हैव बीन डूइंग। Right. Laksha, here you mentioned as global futures or US futures. आज भी ये ऐसा ही हुआ, मार्केट आज नेगेटिव में ओपन हो गया, इंडियन मार्केट निफ्टी, बट आपने देखा रहेगा कि डाउ 200 पॉइंट पॉजिटिव दिखा रहा था फ्यूचर्स पे। राइट। देन मार्केट, ये भी अपने इंडियन मार्केट भी ऊपर जाने को शुरू हो गया, अगेन डाउ नीचे आया, देन फाइनली वी सेटल्ड समवेयर। या सो आपने ऑप्शन के बारे में काफी आप बोल रहे हैं कि प्राइस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं हम लोग मार्केट में। हम लोग कभी भी बोलते रहते हैं बाओ भगवान से बोल के। सो या ओके, नाउ द थिंग इज लाइक इफ वी टॉक अबाउट ऑप्शंस, so do you check option charts or any underlying chart? If and when you are buying, you buy at the money or out of the money?
So chart में I prefer to watch the spot chart. लेकिन Which अगर chart? आपको Which chart? hello Hello. Which chart did you say? Spot. spot I prefer to watch the spot. Okay, spot. Okay. I prefer to watch spot. लेकिन अगर ये भी एक चीज है, सीक्रेट है कि बहुत सारे लोग को लगता है कि यार ये ऑप्शन कितना जा सकता है, तो अगर आपको ऑप्शन का प्राइस का टारगेट पाना है ना, तो वो आपको ऑप्शन के चार्ट में ऑप्शन के चार्ट में अगर आप बॉलिंजर बैंड लगा देते हो, तो आपको एक, जैसे अगर किसी ने अच्छी प्रैक्टिस की है उसमें, देखो कोई भी टेक्निकल पता होना जरूरी नहीं है पैसा कमा दे, उसमें आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कम से कम 3 से 6 महीने, ठीक है। तो मेरा क्या कहना है कि अगर ब्रेकआउट स्टार्ट हुआ इन वन डायरेक्शन और ऑप्शन भागना शुरू हुआ, हमारे पास डाउट होता है कि यार हम निकले किधर पे, बहुत सारे लोग को डाउट होता है मिनिमम कितना होगा। तो मेरा ये है कि 15 मिनट्स और 1 आवर में आपने अगर बॉटम से ऑप्शन का बाउंस शुरू हुआ है, आई एम टॉकिंग अबाउट कि अगर ऑप्शन इज गोइंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप, तो उसका जो टारगेट होगा, पहला टारगेट 15 मिनट का मिडिल बॉलिंजर, दूसरा 15 मिनट का अपर, तीसरा आवरली का मिडिल। अब आवरली का मिडिल और 15 मिनट का टॉप सेम भी हो सकते हैं, ऑलमोस्ट अगल बगल भी हो सकते हैं। तो कहां तक में निकल ही जाना है सेफली इफ यू आर इंट्राडे ट्रेडर। कई बार क्या होता है, बहुत बड़ा क्रैश आ जाता है, बहुत बहुत बड़ा स्टीप फॉल। तो स्टीप जब फॉल आता है तो आप देखोगे कि ज्यादातर जो रिबाउंड्स होते हैं ड्यूरिंग द डे, वो 5 मिनट टाइम फ्रेम के मिडिल बॉलिंजर तक भी बड़ी मुश्किल से पहुंच पाते हैं, बहुत बड़े फॉल। लेकिन अगर डिसेंट फॉल है, बहुत बड़ा फॉल नहीं है, तो 15 मिनट इज अ वेरी गुड टाइम फ्रेम। तो यहां पे मैं क्या देखता हूं, दोनों चीज देखता हूं, स्पॉट मिडिल में पहुंचे उससे पहले मेरा ऑप्शन कहां तक पहुंच पा रहा है। तो मैं सिर्फ ऑप्शन का चार्ट देख के नहीं डिसीजन लूंगा, ठीक है। तो मेरा तरीका अलग है, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको बड़े प्रॉफिट कमाने हैं उसका तरीका, आपको स्पॉट का टारगेट देख के रखना है कि वो अपने रेजिस्टेंस तक पहुंचे, तब तक मैं ऑप्शन को जितना देना है वो दे देगा, मैं वहां निकल जाऊंगा, या फिर आप अपने टारगेट लगा दो। बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रेलिंग की बात करते हैं सोशल मीडिया में आजकल, लेकिन ट्रेलिंग कहना आसान है, करना आसान नहीं है, वो भी इंडियन स्टॉक मार्केट में, वो भी बैंक निफ्टी में, बिकॉज बैंक निफ्टी इज अ काइंड ऑफ एनिमल, 100 पॉइंट की कैंडल बनते हैं आजकल। तो most probably you will get your stop loss eaten. So what I realized is if you believe in your system कि भाई यहाँ पे बेस है, यहाँ से उठेगा, थोड़ा वेट करा सकता है, इन द मनी ऑप्शन लो, ठीक है। इन द मनी मतलब बैंक निफ्टी में 300-400 रुपीज का, निफ्टी में 150-200 रुपीज का, इस तरीके से जज कर सकते हो आप। उसमें अगर आप बैठे हो और आज थर्सडे नहीं है, टुडे इज मंडे और ट्यूसडे और मैक्सिमम वेडनेसडे मॉर्निंग, तो ठीक है। वेडनेसडे का दिन जैसे जैसे कटने लगे ना, बेटर स्विच टू द नेक्स्ट वीक ऑप्शंस इफ यू आर ए ऑप्शन बायर, ठीक है। बिकॉज वेडनेसडे के बाद मैं खुद ऑप्शन सेलिंग की तरफ देखने लगता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यार अब अगले 2 दिन की रेंज पकड़ना थोड़ा आसान है। तो लेट अस ट्राई टू ईट द प्रीमियम, नॉट गेट द हाई प्रीमियम ऑप्शन बाइंग करके। तो दिस इज हाउ आई ऑब्जर्व द ऑप्शन एंड judge the targets. Great. Great. So I had one question. You talked about trend line and indicators. So do you often see the open interest and how important is like open interest कितना important है वो as a confirmation indicator use करते हैं like या फिर like आप how do you use it? Option chain for me is like how the crowd is behaving with respect to what I was thinking. तो अगर I have marked the resistance, ठीक है, for example resistance, and जो spot है वो पहुंच चुका है वहां पे, and I'm checking some option, suppose out of money option बैंक निफ्टी में अगर हम 37,500 पे हैं and I'm checking 37,700 call, मुझे लगता है 37,500 रेजिस्टेंस है। सो व्हाट आई वुड प्रेफर इज लेट मी चेक कि यहाँ पे चल क्या रहा है, बिकॉज व्हाट विल हैपन, द फर्स्ट एक्शन कि ये टॉप है या नहीं है वो आपको ऑप्शन में ही दिखता है, पहला एक्शन। आप बोलोगे यार स्पॉट ऊपर जा रहा है, ऑप्शन तो बढ़ ही नहीं रहा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीरीज, ये प्लेन सिंपल बता रहा हूँ आप लोग को, ये नजर में दिखता है हर दिन कि आपका स्पॉट ऊपर जा रहा है, ऑप्शन बढ़ना बंद हो गया। और यार मेरा तो ऑप्शन पैसे नहीं दे रहा यार, मैं तो बैठा हुआ हूँ कब से। That is when you realize that most probably इस ऑप्शन की या इस लेवल पे ऑप्शन राइटिंग शुरू हो गई है। अब ऑप्शन राइटिंग शुरू हो गई है, अब आप जाओगे और नंबर देखोगे तो आपको वही चीज दिखेगी,
लेकिन वो नंबर आपको सबसे पहले प्रीमियम में दिखता है। तो प्रीमियम को ऑब्जर्व करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत अच्छी चीज है। इसीलिए जब भी आप वॉच लिस्ट बनाते हो तो मैं क्या करता हूं, आई विल, जो मेरा डायरेक्शन है, सो सपोज आई एम थिंकिंग कि मैं बाउंस पे आई विल शॉर्ट, then I will have puts first and then calls. And if puts are giving me suppose 20% after a market fall, calls में डैमेज कितना है ये भी देखता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से वाइस वर्सा देखता हूँ। क्यों देखता हूँ? क्योंकि कई बार आप देखोगे कि मार्केट हैज फॉलन, पुट हैज नॉट गिवन एनीथिंग एंड कॉल आल्सो इज डिकेइंग। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स मोस्ट प्रॉब्ली रेंज बाउंड प्ले चल रहा है, ठीक है। जो बहुत लोग स्ट्रैडल बोलते हैं ना, कि स्ट्रैडल लेके बैठे, शॉर्ट स्ट्रैडल करके बैठे, तो मे बी दैट इज द गेम विच इज बीइंग प्लेड। टाइम पास चल रहा है यहाँ पे, इस जोन में मार्केट को रोकने की कोशिश है, क्योंकि कोई ना कोई तो कर रहा है ना, ये कोई ना कोई तो सेल कर रहा है, कोई बाय कर रहा है। तो जब ज्यादा लोग एक तरह से एक्शन ले रहे हैं तो वो आपको प्राइस में दिखता है, प्लेन सिंपल, प्लेन वैनिला तरीके से। तो आप वॉच लिस्ट जो है आपकी, आपको बहुत कुछ बताती है कि आप किस तरीके से, कई लोग के वॉच लिस्ट में 30 रुपीज 40 रुपीज से ऊपर कुछ दिखता ही नहीं है। So that will not teach you anything. You have to have options of like 200, 250 plus in Bank Nifty and 100, 150 plus in Nifty. तभी आपको ये चीजें ऑब्जर्व करने में समझ में आएगी। एक और ऑब्जर्वेशन है कि भाई अगर 200 पॉइंट निफ्टी मूव होता है तो नॉर्मली हमें प्रीमियम में कितना मिलता है, कितना पैसा मिलता है। इसके लिए 2 पॉइंट है मेरे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को समझ में आएगा। जब मार्केट कोई चीज सरप्राइजिंगली करता है, कोई रेडी नहीं है, अचानक से पलटी मारता है, तो द प्रीमियम मूव विल बी ह्यूज, क्योंकि नोबडी वाज रेडी फॉर इट, ठीक है। और गैप डाउन, गैप अप, क्योंकि सरप्राइज है, गैप अप एंड गैप डाउन आर सरप्राइज मोस्ट ऑफ द टाइम्स। लेकिन सडनली इंट्राडे में जब रिवर्सल्स होते हैं जो उम्मीद में नहीं थे, तो यू विल गेट ह्यूज मनी। लेकिन आपको लगता है यार मार्केट तो ऊपर जाना चाहिए और ऊपर जा रहा है, यू विल नॉट मेक मच मनी इन द ऑप्शन बाइंग। तो ये कुछ चीजें हैं जो ऑब्जर्वेशन में आती हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीजें जो मैंने सिर्फ ऑप्शन के टर्म में बोली, अगर आप ओआई में जाके चेक करोगे ना, तो आपको पता चलेगा यार यहाँ पे तो आउटस्टैंडिंग ओआई काफी था, ये रेजिस्टेंस एरिया, यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग चल रही है। तो ये रेंज को डिफेंड करने का तरीका है जो कि आपको प्रीमियम में दिख जाएगा। और मैं इस हफ्ते का प्रीमियम ज्यादा नोट करता हूँ, मंथली में जाके मैं नहीं देखता, क्योंकि एनीथिंग कैन बी। मैं तो आपको बोलता हूँ ओआई जो आज आप देख रहे हो ना, अगले 1 घंटे में बदल सकता है, 15 मिनट में बदल सकता है, 5 मिनट में बदल सकता है, एक मिसाइल 15 चलने मिनट में, 15 मिनट हाँ, में, राइट। मतलब विद इन अ मिनट आजकल हो रहा है, ठीक है। आज भी ऐसे ही हुआ, मार्केट वाज गोइंग अप अप अप, एवरीबॉडी थॉट इट विल ब्रेक आउट, बट दैट वाज द रेजिस्टेंस। आई हैव मार्क्ड इट ऑलरेडी इन माय मेनी वीडियोस एंड इट टर्न फ्रॉम देयर, बिकॉज मार्केट हैज ऑलरेडी डिसाइडेड कि अभी फिलहाल टाइम पास करना है, लेकिन दोनों को खुश करते रहना। बुल भी खुश है, बियर भी खुश है, एक दिन बुल एक दिन बियर। तो दिस इज हाउ आई लुक एट द ऑप्शन चेन। और ऑप्शन चेन में बेसिकली एक चीज और मैं देखता हूं कि मैं बहुत दूर के ऑप्शन में क्या हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नॉर्मली फोकस करता हूं नेक्स्ट 2-3 स्ट्राइक्स। क्यों? क्योंकि आजकल जब से हेजिंग सिस्टम शुरू हो गया है, तब से आपको जो कंप्लीट ओवरऑल आउटस्टैंडिंग जो टोटल ओआई है, वो सही पिक्चर मेरे हिसाब से नहीं देता। आपको देखना पड़ेगा चेंज इन ओआई इन अगल बगल की 3-3 स्ट्राइक्स पे, देखो क्या चल रहा है, चल क्या रहा है दोनों में, क्योंकि वहीं पे असली मूवमेंट होता है, असली गेम चल रहा होता है। राइटिंग हो रही है, नहीं हो रही है। जैसे आज बहुत सारे लोगों ने सोचा था कि पुट में डिके होगा, पुट में डिके सिर्फ लास्ट के कुछ मोमेंट में हुआ, 5 मिनट में, बाकी टाइम नहीं हुआ। आई वॉज ऑब्जर्विंग वेरी कीनली कि चल क्या रहा है। तो पोजिशनिंग काफी हद तक हुई कि पुट साइड लोगों ने पुट एक्वायर किए होंगे डेफिनेटली, उम्मीद में कि वीकेंड में मिसाइल फायर होंगी। लेकिन अगर नहीं हुई ना, तो देयर विल बी ह्यूज डैमेज ऑन मंडे, बिकॉज नॉर्मली पुट शुड हैव फॉलन, लेकिन नहीं गिरा है। तो दिस इज हाउ यू नो कीप लुकिंग एट द डेटा। प्लस आपको अंदाजा ये लगाना है कि मार्केट प्राइस के हिसाब से क्या करना चाह रहा है, और वो प्राइस ही आपको ऑप्शंस में रिफ्लेक्ट होता है। तो आई यूज बोथ इन सिंक। Great. So that was amazing. And personally, even for price action traders, like you said, it's very clear generally. कहाँ से किधर जाएगा. But again, hourly. So if I have to summarize what you shared about the indicator part, so you spoke about use 1 hour, 20 SMA देखना जरूरी है, and targets one can fix for swing basically.
positional. Hmm. So Bollinger Bands का 15 minutes का midpoint and then upper or the lower point, and hourly का midpoint on the band. So that is something Right. which one can use as very good targets. And yes, moving average can also, daily moving averages can also take good support and resistances. And for Yes. day trading, I think you shared like 15 minutes पे ध्यान देना जरूरी है, but 5 minutes में भी actions होता रहता है. Actions होते रहते हैं, because when you are thinking about reversal, that reversal is getting constructed in 5 minutes. Absolutely. So, right. So, and currently, my question, I'm not getting any questions from the audience. And this is just a disclaimer, whatever we are discussing here is absolutely for knowledge purpose. And we are not recommending you to buy or sell or follow the strategy. It's just for knowledge. Do your own diligence. My question to you now, Laksha, is Yeah. any advice do you have for traders who are going to start off? And what is your current view on the market? Like you shared about the triangle thing, of course, that's there. But any advice to the traders right now? The markets are range bound. So at this kind of scenario, how should one prepare? Okay. So before this meeting, I was thinking कि option buying और option selling को किस तरीके से how people are interpreting, उसको थोड़ा सा correct करने की जरूरत है. I feel तो कुछ points हैं. पहली चीज ये है कि जब आप option buying करते हो ना, तो you have to always play it like one day and test. Never T20. T20 है ही नहीं. मतलब nobody will reward you for the maximum sixes, biggest sixes, longest four. ऐसा चौका मारो कि बैंगलोर में चिन्ना स्वामी स्टेडियम से जाते हुए बैंगलोर रेलवे स्टेशन तक लुढ़कता हुआ जाए. Nobody will reward you for it. Don't try to get into these temptations कि आपको बड़ा प्रॉफिट बनाना एक दिन में. Because option buying is like, you are having one gun and there are many other people in front of you who are firing bullets. आपके पास डेफिनेटली ढाल भी है. ढाल क्या है आपकी? कि आप अपने लॉस को कट कर लेते हो. कहां पे कट करते हो वो फिर भी वो मैटर ऑफ डिस्कशन है, डिस्क्रिप्शन है अपना अपना. लेकिन आप लॉस कट करते हो, दैट इटसेल्फ इज अ बिग थिंग. ठीक है, क्योंकि आई कैन टेल यू वन थिंग. ऑप्शन बाइंग में इट्स ऑल अबाउट यू मूव 2 स्टेप फॉरवर्ड एंड 1 स्टेप बैकवर्ड. इफ यू से नहीं, इम्पॉसिबल. इस साल मैंने इतनी बार, मतलब एक बार तो, मतलब कई बार तो लगता है कि लाइफ सर्कल में आ जाती है. ठीक है, होता है ऐसा. शुरुआत, इस साल की शुरुआत में लगा कि लाइफ सर्कल में आ गई, वापस जहां से चले थे वहीं आ गए. फिर आदमी खड़ा होता है, फिर बढ़ता है, बोलता है यार अब गलती कहां हो रही है. अगर मैंने 20 lakhs बनाए 2-3 महीने में, तो वो 20 में से 15 चले कैसे गए? व्हाट डिड आई डू रॉन्ग? क्योंकि यहाँ ज्यादातर ऑप्शन बायर का यही खेल है. इस 2 महीने अच्छे थे, 10 लाख कमाए, अगले 2 महीने बुरे थे, 15 गवा दिए. आपने 10 भी नहीं गवाए. यू लॉस्ट मोर देन व्हाट यू मेड दिस ईयर. हाउ कैन यू डू दैट? तो पहली चीज मैं क्या करता हूं ना, आई शुड नॉट लूज. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा गोल रहता है कि भाई जो कैपिटल से मैं स्टार्ट कर रहा हूं उस कैपिटल को बाहर करना है अगले 2 महीने. So I started with 5 lakh. I took out 5 lakh out of that 5 lakh because option buying is a very high reward, high risk game. And now this 5 lakh, I should not कि यार चलो ये तो प्रॉफिट ही है, गवा देते हैं, रिस्क लेते हैं ना, खेलते हैं जुआ, हीरो और जीरो. नहीं, I will still be very cautious as if this is my money because this is my money. I made it. I paid taxes, charges, सब कुछ दिया मैंने इस पे. तो पॉइंट ये है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि डोंट मेक योर ट्रेडिंग लाइफ एज ए सर्कल. जहां से चले थे वहीं पहुंच रहे हैं, बार बार वहीं पहुंच रहे हैं. नहीं, आप सर्कल में नहीं हो, आप एक्चुअली माइनस में जा रहे हो. बिकॉज यू आर लूजिंग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज टाइम. एंड यू आर नॉट यूजिंग दिस टाइम टू चेंज योर सेल्फ. बिकॉज अंटिल यू चेंज योर सेल्फ, क्योंकि ये इंसान जो कमा रहा है ना, हर दिन बटन दबा रहा है, ये नहीं बदलेगा, कुछ नहीं होगा. तो पहला चीज तो आपको ये समझना पड़ेगा. दूसरी चीज है, ऑप्शन सेलिंग इज लाइक 10 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड. लेकिन 10 स्टेप जो है ना आपको, वो ऑप्शन बाइंग में उतना आपको 2 दिन में मजा आ जाता है. ऑप्शन सेलिंग में हो सकता है 2 महीने लगे. पॉइंट क्या है कि अगर आपकी लाइफ बहुत बिजी है, आपके पास और भी काम है, तो आपके पास ऑप्शन बाइंग जो है ना, उसका वॉलेटिलिटी झेलने का समय भी नहीं है और आप नहीं झेल पाओगे. बिकॉज इट नीड्स फोकस.
आप स्क्रीन से नजर नहीं हटा सकते, ठीक है। अभी 2 दिन पुरानी बात है, मैंने नजर हटाई और मेरा मतलब प्लस था 1.5, अचानक से देखा तो फ्लैट हो गया। अब वो 1.5 प्लस से फ्लैट होना नॉर्मल हो सकता है, लेकिन अगर आप वहां पे निकलने की सोच रहे थे और आप नहीं निकले तो वो लॉस कहला गया, बिकॉज यू शुड हैव बुक्ड इट, बिकॉज यू वांटेड टू बुक इट। तो पॉइंट ये है कि व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू आर डूइंग इज मैचिंग और नॉट। लेकिन मेरे उस केस में नहीं मैच कर रहा था। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे यार मेरे को बस 2,000 मिल जाए तो काम हो जाए, लेकिन जब 2,000 बनता है तो आर यू बुकिंग द प्रॉफिट, और यू आर ट्राइंग टू गिव द जस्टिफिकेशन, अरे मेरा आर आर कितना है, या मैं ट्रेल करूंगा। अरे ट्रेल की बटन भी दबाइए, कौन सा इंडिकेटर लगाओगे, कैसे पता चलेगा कहां तक जा सकता है, क्या मैक्रो एनालिसिस किया है, बड़े टाइम फ्रेम का किया है, कितना बाउंस आ सकता है, क्या कोई न्यूज है, क्या ग्लोबल मार्केट ऐसा चल रहा है जैसा तुमको सपोर्ट होगा। तो ये सब चीजें सोचनी पड़ेंगी, एंड दिस इज वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग मिस्टेक। आई हैव सीन दिस ईयर 3 to 4 फॉल बैक्स। फॉल बैक्स आर पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। मेरा पहला फॉल बैक 50% का था, ठीक है, वो शुरू शुरू में ही हो गया, तो छोटा कैपिटल, मतलब जैसे मैंने आज 2 लाख बनाया और 2 लाख में से 1 लाख चला गया। उसके बाद जो मेरा दूसरा फॉल बैक था, फॉल बैक का मतलब है मैंने इस साल 20 बनाया, 20 बनाया, 30 बनाया, 40 बनाया, अब 40 लाख से मैं वापस से 30 आ गया, विच इज ओके। 25% हो सकता है, बिकॉज ऑप्शन बाइंग आपका मेजर चीज जो आप करते हो। इनफैक्ट आई लॉस्ट फ्यू ऑफ द मनी इन ऑप्शन सेलिंग ऑल्सो वंस और ट्वाइस, क्योंकि मैं ऑप्शन सेल करके मैं बिजी हो गया, देखा तो अरे ये क्या हो गया, ब्रेकआउट हो गया था, कोई न्यूज आ गई थी। सो पॉइंट इज कि आपका जो फॉल बैक है वो छोटा करो, होगा, डेफिनेटली होगा। और ये तभी हो सकता है जब आपको पता है कि मैं एक चीज अपने आप को समझाता हूँ, मैं सही बता रहा हूँ भाई, मैं कोई बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ एक ऑनेस्ट आदमी हूँ जो हमेशा सच बोलता है, ठीक है। लोगों को बुरा क्यों लगता है, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ। अगर मैं मक्खन पॉलिश करूंगा ना, लोगों को अच्छा लगेगा, लेकिन मैं सच ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप बुरा टाइम जो चल रहा है या आया था उससे आपने लर्निंग नहीं ली है ना, तो यू मिस्ड दैट बिग अपॉर्चुनिटी। Because the best learning comes when you don't have money. You don't have money to pay rent, you don't have money to eat, you don't have money to travel, you don't have money to pay your electricity or expenses. That is when you learn value of money. 2,000 रुपए नहीं थे मेरे पास बिजली का बिल देने के। So that was the situation I was in. I have delivered food at people's house. I had a small restaurant. रेस्टोरेंट नहीं कह सकते उसको, वो ज्यादा इज्जत देने के लिए मैं फेंक रहा हूँ। जैसे लड़के का बाप बोलता है ना कि यार मेरा बेटा बहुत कमाता है, पता लगा नौकरी अभी अभी लगी है, पहली सैलरी भी नहीं आई है, तो फेंकते हैं ना, तो वैसे ही। बट इट वॉज ए स्टॉल, ठीक है। सो आई डिड दैट, आई डिड एवरीथिंग, बट दिस मेड मी हम्बल। मे बी आई एम ए ब्रूट ऑनेस्ट पर्सन, थोड़ा मुंहफट हो सकता हूँ, क्यों नहीं। पूरा नेटफ्लिक्स, पूरा अमेजॉन प्राइम तो ब्रूट ही है ना, जिसको आप पॉपकॉर्न के साथ खाते हो। सो यू हैव टू बी ए रियल पर्सन, और अपने आप को पहचानो। मेरी बातों से कन्विंस मत हो, किसी और की बातों से मत हो। माँ बाप बोलते हैं जुआरी है लड़का, फॉरगेट अबाउट इट। पूरा पैसा एलआईसी में डाला हुआ है, एलआईसी खुद इन्वेस्ट करती है मार्केट में, और बेटा डायरेक्टली एलआईसी से टक्कर ले रहा है तो उसको जुआरी बोल रहे हैं। तो ये सब प्राउड वाली चीजें हैं, ये सब चीजें हैं जो आप इंट्रोस्पेक्शन अपने आप में करोगे और सुधरोगे। और ऑप्शन बाइंग क्या है, ऑप्शन सेलिंग क्या है, उसको समझोगे, ये लाइफ बदल देगा। समझो कि अगर आप ऑप्शन बायर हो, यू डोंट हैव मच टाइम, आप वेट नहीं कर सकते, आपको निकलना पड़ेगा। आपके पास 20 ओवर हो सकते हैं, 5 ओवर हो सकते हैं, आपको 5 ओवर में 20 रन बनाने हैं, ठीक है। तो आपको वेट नहीं करना है, आपके पास उतना समय है, क्योंकि अगर आप वेट करोगे तो आप आउट हो जाओगे, मतलब आपका कैपिटल जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन बाइंग को उस तरीके से लो। और जब ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो इट्स ए वेटिंग गेम। तो ऑप्शन सेलिंग में कई लोग इन द मनी सेल करने की कोशिश करते हैं, 500 रुपए का प्रीमियम, 600 रुपए का प्रीमियम। नहीं, ऑप्शन सेलिंग का गेम ही डिजाइन किया गया है, यूटिलाइज दी, वो जो चीज कहते हैं ना कि आपको एक्स फैक्ट, आपको बेनिफिट दिया गया है, आपको एक कोटा दिया गया है कि यार तुम 60 रुपीज वाला ऑप्शन बेचो ना यार, दूर का, क्यों सेल करना है 500 रुपए वाला, क्यों टेंशन लेनी है। टेंशन ही लेनी थी तो ऑप्शन बाइंग कर लेते। तो कई लोग बोलते हैं मैं टेंशन नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी ऑप्शन सेलिंग करता हूँ और 500 रुपए का ऑप्शन सेल करता हूँ। तो दैट डजंट मेक एनी सेंस। यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू, ठीक है। डोंट ट्राई टू कंफ्यूज योरसेल्फ। और ये बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो ये सभी चीजें मुझे शेयर करनी थी कि दिस कैन इम्प्रूव लाइफ ऑफ ए ट्रेडर, एंड इफ यू रियली वांट टू बिल्ड योर मनी, ठीक है, कैपिटल, आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो में भी, यहाँ पे डिस्कशन करेंगे उस बारे में, हाउ आई बिल्ट दिस ईयर, ठीक है। मैंने बहुत बड़ा कैपिटल बिल्ड किया है अपने छोटे से कैपिटल से। आई यूज सम मनी मैनेजमेंट टेक्निक्स, देसी है लेकिन काम करती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल आई वांटेड टू गिव एज अ सजेशन फॉर न्यू ट्रेडर्स।
That was lovely, Raksha. It was really very nice of you. You shared your practical experiences, and of course, the life of a trader is always a life of struggle. That you, me, we all understand it very well, and many of us will resonate to that. Yes, discipline is the key. That's what you taught us, and being humble in front of the market. That's something which one should never forget. So thank you, Lakshya, for this lovely evening on FNOP Charcha, which you My shared pleasure. with us. Surely, And I'm always ready to help a majority of crowd जो सुनना चाहता है, बदलना चाहता है, कुछ अच्छा करना चाहता है, because everybody knows there is a huge potential. मैं कई बार बोलता हूँ कि only 10% people will make money. तो लोग बोलते हैं सर ऐसा आप डिमोटिवेट कर रहे हो. मैं ये बोल रहा हूँ why don't you become that 10%? that 10%, yes. It's a fight. And वो 10% बनने का फाइट तो यार लड़ना पड़ेगा ना, लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी. मैं आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकता ना, मैं अपने एक्सपीरियंस से Absolutely. लड़ सकता हूँ. और हर इंसान का अपना अपना स्टाइल है ट्रेडिंग करने का, इन्वेस्टमेंट का, एंड वन शुड फाइट देयर ओन. So thank you very much, Lakshya, on this. Thank you, Manas, Peter, Harsh, and all you lovely audience who spent the evening with us. आप लोग चाहो, you can follow us on Twitter, and we will give you more updates. If you have any questions, doubts, feel free to ask us and directly message us. We're always there to help you out. You guys can also tag me or maybe ask me questions on my Twitter. ठीक है, तो Yes, definitely I'm okay, open for any questions आज के लिए. Yeah. great. Thanks, So thank Lakshya. you, everyone, and have a great weekend ahead. All the best. Thanks, Lakshya. Thank you, everyone. Thank Thank you. Thank you guys. Thank